Good morning everyone. Welcome to Conquer Learning, the YouTube channel for Padai exam prep. Do let me know if I am audible and the content or the slide is visible. Fine. So without any delay, we will be starting the session because after this we have two more sessions on Padai app. So this is the free session for each one of you where we are going to actually discuss the latest exam which was conducted on in December 2023. So we are going to do those questions in detail and help you out to understand that what kind of questions could be asked in exam, right? I'm Lakshmi Kushwaha, your educator for Code 55, Human Industrial Relations and Human Resource Management. Okay, done. Fine, those who have joined, most welcome to the session. And let's start. Okay, so before we start, let me introduce myself. I am Lakshmi Kushwaha. I have qualified NET in Labor Welfare, Human Resource Management and Industrial Relation with 98.74 percentile. I am holding 4.5 years of professional experience and 4 years of teaching experience. So I have been working with Times of India. Then I worked with an academy as an educator, and currently I have my own Padai app where I teach the subject Code 55, and you can follow me on this Conquer Learning YouTube channel for all the classes, free classes related to Code 55, as well as you can download the Padai app if you wish to follow my courses, right? So that was all about me. So let's start without any delay. Aarti, good morning, and Vikram, Varham Zone, good morning, Nisha, good morning, and welcome to the class. Okay, so what I have found that the questions which were asked in 2023 December, they were not difficult. See, why we do the PYQ? PYQ क्यों करते हैं? The basic purpose of doing the PYQs is to understand that किस तरीके के questions आते हैं, क्या चीज़ repeat होती है, कौन से topic repetitively पूछे जाते हैं. That is what the purpose, that's why we do the PYQ, and to score better, right? Now one thing that is going to happen is syllabus is going to get updated, right? But sometime the some of the my students, कुछ students ने मुझे पूछा था कि मैम syllabus अगर update होने वाला है तो अभी से पढ़ाई करके कोई फ़ायदा है क्या? See, सिलेबस हैव बीन चेंज नंबर ऑफ द टाइम्स, लेकिन जो आपका बेसिक होता है ना वो नहीं बदलेगा. जो आपको पढ़ना है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ना है तो पढ़ना है. वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को हटा के कुछ और नहीं पढ़ाएंगे. उसी तरीके से पेपर 1 में जो बेसिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, वो पढ़ना है तो पढ़ना है. उसमें एड ऑन होगा, चीज़ें ऐड ऑन होगी. सो इफ़ यू आर वेटिंग कि सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, देन यू वुड बी लिटिल लेट. आई एम सो सॉरी टू से, बिकॉज फिर आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा. इट्स बेटर यू स्टार्ट नाउ, एंड इट्स इन फ्यू डेज ओनली अपडेटेड सिलेबस भी अनाउंस हो जाएगा. फाइन, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the advantages of group decision making? So the question is asking you about the advantages about group decision making. More information and knowledge are available. Enhanced communication of decision may result. Undesirable compromises may happen. Groupthink may occur. It is costlier. So advantages. Try to answer in the comment section. दीपिका फरीहा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास. यस, क्या होगा? एडवांटेजेस पूछे हैं. सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस in which out of the given alternative you select the best alternative that will satisfy the required condition and helps you to achieve the goals. Now there can be individual decision making, group decision making. So individual decision making, when an individual takes himself it takes the decision making, and the group decision making when the person as in group, they work in a team and then they take a decision. Okay, so the answer for this is option number 1. More information and knowledge are available. Enhanced communication of decision may result.
Undesirable, this is not advantage, this is disadvantage. Groupthink occur, this is also disadvantage. It is costlier, this is also disadvantage. Yes, it is costlier. Why you all are marking 3? It is actually the costlier process because number of the people. See, group decision making is not that simple. Decision making requires actually training also to help एम्प्लॉयज को ये सिखाना भी पड़ता है या टीम मेंबर्स को ट्रेन भी करना पड़ता है कि डिसीजन लेते वक्त क्या क्या करना होगा. तो हम एक थोड़ा सा ना इसको ऐसे समझ के चलते हैं कि जब इंडिविजुअल होते हैं या जो ग्रुप होते हैं, इंडिविजुअल जब डिसीजन लेगा उसका अपना माइंड, अपनी एनालिटिकल थिंकिंग, अपनी सोच को यूज करके वो डिसीजन लेता है. लेकिन जब ग्रुप की बात होती है तो नंबर ऑफ पीपल होते हैं, नंबर ऑफ माइंड्स, नंबर ऑफ आइडियाज आर जनरेटेड, कम्युनिकेशन होगा तो बेटर रिजल्ट आने की, और ये स्पीडियर भी होता है. ग्रुप डिसीजन मेकिंग ना स्पीडियर डिसीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे ग्रुप डिसीजन में मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल आइडियाज आते हैं, तो मल्टीपल थिंग्स कैन बी रिजॉल्व एट वन टाइम. इंडिविजुअल के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है. अब ग्रुप, जो हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, इसके साथ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रुप थिंक. और ये अनडिजायरेबल कॉम्प्रोमाइजेस जो हैं ये कुछ ग्रुप थिंक से ही रिलेटेड है. ग्रुप थिंक, ठीक है. और एक और टर्म होती है ग्रुप पोलराइजेशन. ये आप डिसएडवांटेज कह सकते हैं या इफेक्ट्स ऑफ द ग्रुप डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं. अब ग्रुप थिंक का मतलब क्या होता है? सो लेट्स से आपके स्कूल में आप जब फ्रेंड सर्कल में देखा होगा कि हम लोग जब खेलते थे, छोटे थे, तो अगर हमारी किसी और पर्सन से लड़ाई हो जाती थी या किसी ग्रुप से लड़ाई हो जाती थी तो एक से भी लड़ाई हो जाती थी, दूसरा बोलता था कि आज से हमारी तुम्हारे से कट्टी, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे ही नहीं, कोई नहीं बात करेगा, मेरे ग्रुप का कोई मेंबर तुमसे बात नहीं करेगा. बट इसमें कहीं पे एक ग्रुप का मेंबर है, चलो बोलते हैं ए. अब ए बोल रहा है कि मेरी तो होमवर्क बुक इसके पास में है, बी के पास में जो दूसरे ग्रुप में है, लेकिन ए जो है चाह कर भी इस ग्रुप डिसीजन को ओवर डोमिनेट नहीं कर सकता. तो ये होता है ग्रुप थिंक व्हेन द डिसीजन मेड बाय द ग्रुप डोमिनेट्स द सिंगल इंडिविजुअल. प्रेशर में आके जब वो सबकी डिसीजंस को हाँ बोल देता है, भले ही उससे एग्री हो या ना हो, इसे हम ग्रुप थिंक कहते हैं. ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब क्या है? सारा ग्रुप एक तरफ डिसीजन ले रहा है और आप अकेले पोलराइज्ड हो, अकेले खड़े हो, ग्रुप से अकेले खड़े हो, नहीं भैया मैं ग्रुप के साथ, उसे हम पोलराइज. सी, ग्रुप थिंक में क्या होगा कि आप बोल नहीं पा रहे हो कि मेरा डिसीजन कुछ और है. पोलराइजेशन में है कि आप खड़े होके बोल रहे हो कि नहीं मैं ग्रुप के साथ नहीं जाऊंगा. तो ये पोलराइजेशन भी होता है जब ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है एंड इट इज कॉस्टलियर. ठीक है. सो फॉर यू the strength of the group decision making, weakness of the group decision making, group think, group shift. The group shift as actually the polarization. This PDF would be shared in the group. You can download it from there. Fine. So that was your first question. Let's move to the next. As per the provisions of Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act of 1952, a pension fund can be created with which of the following? So we know provident fund जो होता है, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं. पीएफ जो होता है उसके अंदर में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट. तो एम्प्लॉई का जो 12% होता है वो पूरा का पूरा 12% पीएफ के अकाउंट में जाता है. लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है इसका कुछ पार्ट पेंशन में जाता है और कुछ पार्ट पीएफ में जाता है. अब आपको आंसर करना है कि ये जो पेंशन में जाता है वो कितना है, और जब हम ये पीएफ का कैलकुलेशन करते हैं ना 12% ऑफ द वेजेस, तो ये वेजेस में हम काउंट क्या करते हैं? बेसिक, डियरनेस अलाउंस. सो क्वेश्चन उसी के बारे में है. read the options and answer in the comment section. So the first A is such sum from the employer's contribution not exceeding
8/1/3, सो इसको आप 8.33% बोल सकते हैं, of the basic wage, dearness allowance, retaining allowance on any of the concerned employee. Such sum are payable by the employer of the exempted establishment. The net asset of the employee's family pension fund as the date of the establishment of pension fund. Such sum of employees' contribution not exceeding 1 1/3% of basic dearness allowance retaining. Such sum of as the central government may after due appropriation by parliament by the law. तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो पेंशन है ना, पेंशन के अकाउंट में जो पैसा जाता है वो कैसे क्रिएट होता है, कैसे जाता है, उसके अंदर में एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है तो कितना करता है, क्या एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन वहां पे होता है? यस, आंसर कौन से दो ऑप्शन, जिन्होंने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट को पढ़ा है उनके लिए ये इजी होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द क्लासेस. सो बेसिकली इसका आंसर 3 है, ए, बी, सी एंड ई. डी नहीं है. द रीजन इज एम्प्लॉय का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट पेंशन में नहीं जाता है. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं करता है पेंशन में, केवल और केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है, जिसमें 8.33% या 8/1/3 होता है किसका? बेसिक वेजेस का, डियरनेस अलाउंस का और रिटेनिंग अलाउंस का. रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है? वो अलाउंस जो एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. अब this is given where section number 6A of employees pension scheme 1995. this is very important act because इसके अंदर में जो 4 स्केड्यूल दिए गए हैं, स्केड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन सी स्कीम, सो हमारे पीएफ के अंदर में प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको ईयर्स पता होने चाहिए. तो ये सारे ऑप्शन सी, कंट्रीब्यूशन नॉट एक्सीडिंग 1/3, सम्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट. अब ये क्या है? एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट या एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है? सी, एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट या एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय मतलब वो एम्प्लॉयज या एस्टेब्लिशमेंट जहां पे कंट्रीब्यूशन उनका एग्जेम्प्टेड होता है, एक पर्टिकुलर सैलरी के लेवल के नीचे होते हैं, जिसकी वजह से उनको कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है, लेकिन एम्प्लॉयर उनका कंट्रीब्यूशन देता है. ठीक है, इसको डिटेल में हम हमारे लॉ की क्लास में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है. इट इज द एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन दैट बिकम द बेसिस फॉर हिज और हर बिहेवियर. इंडिविजुअल बिहेव इन अ गिवन मैनर based not on the way their external environment is but rather on what they see or believe it to be. So सबसे पहले तो परसेप्शन का मतलब समझिए. परसेप्शन यानी हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हम जो उसे रिटेन करते हैं और बाद में इंटरप्रिटेट करते हैं. तो हमारे सिचुएशन में हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है, उस सिचुएशन को देखकर, ठीक है, वो सिचुएशन एक्चुअली क्या है या एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, हम उसके बेसिस पे रिएक्ट नहीं करते हैं. हम किसके बेसिस पे रिएक्ट करते हैं कि हम वो सिचुएशन को कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं. तो जैसे कि अगर जैसे कहीं आग लगी है, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं. कुछ लोगों का परसेप्शन उस आग को देखकर डरकर भाग जाना होगा. वो आग जहां लगी है उस चीज को देखकर भागेगा. क्यों? कहीं ना कहीं उसके बैकवर्ड, उसके एक्सपीरियंस में उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से वो फायर से डरता है, आग से डरता है. उसने देखा हो, उसने पढ़ा हो, उसको पढ़ाया गया हो, ऐसा कुछ. और कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे फायरमैन्स होते हैं जो आग को बुझाते हैं, तो उनका परसेप्शन उस सिचुएशन के लिए कैसा है कि हमारा काम है, हमको डरना नहीं है. तो नाउ यू आंसर व्हाट वुड बी द क्वेश्चन. दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब मैंने समझा दिया है कि परसेप्शन, मेरा जो परसेप्शन होगा सिचुएशन का, उसी के बेसिस पे मेरा बिहेवियर क्या होगा ये डिसाइड होता है. और इंडिविजुअल एनवायरमेंट में क्या हो रहा है उसके बेसिस पे नहीं एक्ट करता है. वो क्या देख रहा है, वो क्या परसीव कर रहा है, राइट.
Correct. So the answer is option number A. Both the statement, assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation. Next question. ये तो हाईली एवरी एग्जाम, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है. तो आप अगर थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे. 100% ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है और 2 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के होते हैं. तो नॉट अ थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर. सो यहाँ पे आपको मिक्स करके थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर एंड थ्योरीज ऑफ द वेजेस दिए हुए हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है, नॉट बताना है. सो पोलिस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, थ्योरी ऑफ एडुकेसी ऑफ वेज, फिलेंथ्रोपिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी, प्लेसेटिंग थ्योरी. नॉट मतलब जो वेज थ्योरी है वो आइडेंटिफाई करनी है. यस, आंसर. Okay, waiting for the answers in the comment section. What would be the correct answer? So labor welfare का मतलब क्या होता है? labor welfare का मतलब होता है कि extra facilities which are given to an employee other than the wages and salary. salary तो देते ही हैं, वेजेस और सैलरी के अलावा जब आप उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हो in order to maintain the standard of living of an employee, in order to maintain his status, fulfill his basic requirement, तो हम उसे लेबर वेलफेयर कहते हैं. जैसे क्रेच फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, डिस्पेंसरी फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, हाउस रेंट, ये सारे वेलफेयर हैं. ठीक है. यस, कुमार विक्रम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. यस, the answer for this is option number 3, B and D, advocacy of the wage and your theory of efficiency. ये है आपके वेज थ्योरी. ठीक है. या आप प्रिंसिपल्स भी हैं. ठीक है, सॉरी मैं थ्योरी ऑफ वेजेस बोल रही थी, प्रिंसिपल्स. दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर एज वेल. ठीक है. तो हम पोलिस थ्योरी क्या होती है? पोलिस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर कहता है कि एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर एक सेल्फिश है, सेल्फिश पर्सन है. वो अपने केवल और केवल अपनी बेनिफिट के बारे में सोचता है. उसको केवल और केवल अपना प्रॉफिट चाहिए. एम्प्लॉयर जो है बिना किसी भी प्रेशर के, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के जो एक एम्प्लॉय को बेसिक रिक्वायरमेंट देनी होगी वो भी नहीं देगा. सो पोलिस थ्योरी या जिसे हम पॉलिसी थ्योरी कहते हैं, यह थ्योरी कहती है that if you want the employer to give minimum wage, minimum labor welfare, it is very important to regulate. impose करना जरूरी है, डंडे के बिना वो काम नहीं करेंगे. इसके लिए लॉज बनते हैं, लेजिस्लेशन बनते हैं, जिनके बेसिस पे ही वो वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं. एडुकेसी ऑफ द वेज का प्रिंसिपल कहता है कि एडुकेट वेजेस, यानी आप किसी एम्प्लॉय को सही तरीके से वेजेस दे रहे हैं, तो एडुकेट वेजेस देने से सब कुछ नहीं हो जाता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू ओवरऑल या हॉलिस्टिक ग्रोथ. अब ये ओवरऑल हॉलिस्टिक ग्रोथ कैसे आएगा? जब आप उसको और भी सारी वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. देन फिलेंथ्रोपिक थ्योरी. फिलेंथ्रोपिक थ्योरी ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, ये है आपकी थ्योरी. फिलेंथ्रोपिक थ्योरी कहती है कि एम्प्लॉयर जो है ना, उसको लव फॉर मैनकाइंड है. लव मतलब वो लोगों के दुख दर्द को देख नहीं सकता, इसलिए लेबर वेलफेयर प्रोवाइड करता है. थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी ये प्रिंसिपल है. ये कहती है या ये थ्योरी हमारे वेजेस में भी है. तो ये एफिशिएंसी थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ द वेलफेयर कहता है कि अगर आपको एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको सही तरीके से लेबर वेलफेयर भी प्रोवाइड करेंगे या वेजेस प्रोवाइड करेंगे. प्लेसेटिंग थ्योरी. प्लेसेटिंग थ्योरी कहती है दैट एम्प्लॉयज या लेबर आर नो मोर इग्नोरेंट, अनजान नहीं है. नाउ दे नो देयर राइट्स, उनको उनके राइट्स पता है, क्या करना है, कब क्या मांगना है. तो वो क्या हो जाते हैं? वो मिलिटेंट हो जाते हैं. वो मिलिटेंट हो जाते हैं, लड़ेंगे, आपके अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे. तो उनको शांत करने के लिए वो अपना सही हक मांगते हैं. तो आपको प्लेसेटिंग थ्योरी को हम अपीजमेंट थ्योरी भी कहते हैं. वो अपनी सही प्लेस मांगते हैं, तो उनको शांत करने के लिए आप लेबर वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे.
ठीक है। यस कुमार, व्हाट इज योर क्वेश्चन? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द मेन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया अर्लियर फॉर द लेटेस्ट। ये 3-4 एग्जाम से ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, ये हर एग्जाम में आता है और लास्ट 4 एग्जाम से ये क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है। बट क्या करते हैं, बस ये ऑप्शंस को बदल देते हैं। बाकी 100% श्योर है ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आप जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है उसे स्किप नहीं करेंगे, 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो यू हैव टू अरेंज कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की ये स्कीम्स ईयर वाइज अर्लीस्ट टू लेटेस्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, it is a term which allows the employees or the workers to participate in decision making, that is management decision making, ठीक है, उसे हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कहते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट 1956 की इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी के थ्रू फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था, या इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी 1956 में फर्स्ट टाइम ये बात बोली गई थी कि हमारे पास में वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉइज के पास कुछ ऐसे नॉलेज होती है, एम्प्लॉइज के पास में कुछ ऐसे सजेशंस होते हैं जो डिफरेंस ला सकते हैं। और अगर आपको अपने एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उनको अपने कंपनी की तरफ डेडिकेटेड बनाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे, ठीक है, उनको क्या करवाएंगे? पार्टिसिपेट करवाएंगे। सो 1956 में पहली बार WPM के बारे में बात हुई थी। 42nd अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43A से WPM को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा हमारे जो लॉज हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में हमारा सेफ्टी कमेटी है, हमारा ID एक्ट के अंदर में वर्क कमेटी है, ग्रीवियंस कमेटी है, इन सभी के अंदर में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के प्रोविजंस हैं। यस, द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2। तो अगर हम स्कीम की बात करें तो सबसे पहले द वर्क कमिटी 1947, वर्क कमिटी इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 3 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। वर्क कमिटी क्या कहती है, या ये सेक्शन क्या कहता है, दैट इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर देयर आर 100 और मोर वर्कमैन, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहां 100 और मोर वर्कमैन है, वहां पे एम्प्लॉयर बाय द जनरल या स्पेशल ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सरकार ऑर्डर देगी जनरल ऑर्डर के थ्रू या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, के एम्प्लॉयर कॉन्स्टिट्यूट करेगा वर्क कमिटी। इस वर्क कमिटी के अंदर में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के। इस वर्क कमिटी का काम क्या है, उसके पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वर्क कमिटी बायपर्टाइट बॉडी है, बायपर्टाइट बॉडी यानी इसमें 2 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का। वर्क कमिटी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी क्यों? बिकॉज ये लॉ के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया। वर्क कमिटी एक वॉलेंट्री सेटलमेंट मशीनरी है। वाई वॉलेंट्री सेटलमेंट? क्योंकि इसको हम प्रिवेंटिव मशीनरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच आने वाले डिस्प्यूट को प्रिवेंट करती है, आने नहीं देती है। तो ये कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वर्क कमिटी का काम है कि ये जो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के, इनके थ्रू दोनों के बीच में सलाह मशवरा रखना और प्रॉब्लम्स को रोकना, आने नहीं देना। मैक्सिमम एक वर्क कमिटी में 20 मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा है हमारा जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल 1958। अब इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ये नॉन स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, मतलब ये हमारे किसी लॉ में नहीं दिया हुआ है।
जो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल का प्रोविजन है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था 1956 के इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी में जो पहली बार वर्क कमेटी की बात हुई थी, उसी के बेसिस पे ये स्कीम बनाया गया था। ये जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल वेयर इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट देयर आर 500 और मोर, जहां 500 और मोर उससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहां पे जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। मिनिमम 6 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 12 मेंबर्स होते हैं इस जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर। बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन बात करता है कि जो बोर्ड होता है ना, डायरेक्टर्स का बोर्ड, उसमें एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन अलाउ करनी चाहिए। ये 1970s में आया। एम्प्लॉय डायरेक्टर, तो सी और डी ऑलमोस्ट सेम है, एक ही ईयर में आए थे। एम्प्लॉयज डायरेक्टर यानी बोर्ड के अंदर में एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव। ई में 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये इंदिरा गांधी, मैडम इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंडर में ये प्रोविजंस आए थे, उसके अंदर में, ठीक है, उन्होंने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड द लेबर वेलफेयर। तो उसके अंदर में 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर में 15th पॉइंट था। 15th पॉइंट क्या था कि शॉप काउंसिल और यूनिट काउंसिल होना चाहिए। अब ये शॉप काउंसिल और यूनिट काउंसिल क्या है, ये भी WPM है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। शॉप का मतलब होता है डिपार्टमेंट जो होते हैं ना फैक्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंटल लेवल पे शॉप काउंसिल बनना चाहिए जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होंगे, ठीक है। और जॉइंट काउंसिल यानी प्लांट लेवल पे, उस डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट से एक प्लांट का हिस्सा है, तो प्लांट लेवल पे एक जॉइंट काउंसिल होना चाहिए जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव को रखेंगे। जो शॉप काउंसिल है, ये शॉप काउंसिल का मेन पर्पस बेसिकली वेलफेयर, हेल्थ, अटेंडेंस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का काम करते हैं। इनके जो प्रॉब्लम्स शॉप काउंसिल पे सॉल्व नहीं होती है ना, फिर वो जॉइंट काउंसिल पे जाती है। जॉइंट काउंसिल प्लांट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जॉइंट काउंसिल मॉनेटरी इश्यूज पे भी वर्क करते हैं। देन केम, जब ये सक्सेसफुल हो गया ना 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये एक्चुअली जब सक्सेसफुल हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेबल हुआ था, तो उसके सक्सेसफुल होने के बाद में यूनिट काउंसिल और जॉइंट काउंसिल को कमर्शियल सर्विस, दूसरा पॉइंट आप कैसे याद रखेंगे, कमर्शियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पे यूनिट काउंसिल और जॉइंट काउंसिल का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब सिमिलर है शॉप से, बट ये स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लांट लेवल पे है, और जॉइंट आप बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का होल लेवल पे है। देन इसकी सक्सेस के बाद में इंस्टीट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये स्पेसिफिकली सेंट्रल बैंक्स के लिए आया था, ठीक है, 1983 में। वर्कर्स इक्विटी ऑफ 1985, ये हमारे राजेंद्र वर्मा, इनकी जो पॉलिसी, रविंद्र वर्मा, नॉट राजेंद्र, सॉरी, रविंद्र वर्मा जो नॉन लीडर हैं, उनकी जो एक तरीके का आप कह सकते हैं रिकमेंडेशंस के बेसिस पे शेयर, इक्विटी में वर्कर्स का शेयर होना चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन से आया था। तो ये हमारा सीक्वेंस है, इसको रटना है, ये हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द स्टैट्यूटरी वेलफेयर मेजर pertaining to the कैंटीन फैसिलिटी। सो हमारी कैंटीन फैसिलिटीज या कैंटीन का प्रोविजन काफी सारे लॉज में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, चलो आंसर कीजिए, कौन सा सेक्शन सही नहीं है पेपर कोड 55 में। कुमार विक्रम, आपका जो आंसर है ना, आप जो बोल रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशन, HRM या लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक जिस भी सब्जेक्ट के हो, मैनेजमेंट में हो, कॉमर्स में हो, ISW में हो, HR में हो, सबके क्वेश्चन सेम होते हैं, MCQs, क्योंकि मैटर वही है, कंटेंट वही है, मैटर वही है, तो वही क्वेश्चंस होते हैं।
कुछ भी बदलता नहीं है। तो अगर आप IAS, आपने जो मुझे बताया था, आप सोशल वर्कर, आप सोशल वर्क में आपका वो हो रखा है, स्टूडेंट हो आप उसके, तो अगर आप इस कंटेंट को कोड 55 में फॉलो करते हो तो आपका कवर हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर इज विच इज नॉट, नॉट का मतलब नहीं है। CND सेक्शन 44 नहीं है फैक्ट्रीज एक्ट का, सेक्शन 46 है जो कैंटीन के बारे में बात करता है, और सेक्शन 12 नहीं है, सेक्शन 11 है जो कैंटीन के बारे में बात करता है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में हमारा सेक्शन 16 है। चलो नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ द जॉब्स हैव सिमिलैरिटी इन एन कंपेरेबल फैक्टर or those considered as existing at same level in the terms of their values is called pay grade, pay range, pay scale, pay standard. Highly confusing terms, but ये terms आपको पता होने चाहिए। चलिए, yes, क्या होगा इसका आंसर? What do you mean by the term group of the jobs? ग्रुप ऑफ द जॉब्स यानी एक ऐसा जॉब्स हैं, लेट्स से HR एग्जीक्यूटिव, HR और लेट्स से HR रिक्रूटर, सीनियर रिक्रूटर, जूनियर रिक्रूटर, और रिक्रूटर के अंदर में भी सेल्स रिक्रूटर, नॉन सेल्स रिक्रूटर, ठीक है, ये सब एक जॉब का ग्रुप है। हैविंग सिमिलैरिटी, हाँ इनके अंदर में सिमिलैरिटी है। कंपेरेबल फैक्टर, हाँ इनके फैक्टर्स को आप कंपेयर कर सकते, और दे एग्जिस्ट एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे होते हैं। यस, सो द आंसर फॉर दिस इज पे ग्रेड। इसको हम पे ग्रेड, सॉरी, दिस इज नॉट 2, इसका आंसर 2 नहीं है, 1 है। The group of the jobs having the similar, so this is not 2, this is 1, इसका आंसर पे ग्रेड है, ठीक है। आंसर इज नॉट 2, आंसर इज 1, पे ग्रेड। जब ग्रुप ऑफ द जॉब्स को आप कंपेरेबल फैक्टर्स के बेसिस पे सेम लेवल पे रखते हो तो हम उसे ग्रेड कहते हैं, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है कि सैलरी रेट्स क्या है, रेंज का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स और लेवल विद इन अ पे ग्रेड यूजुअली बेस्ड अपॉन द ईयर्स ऑफ सर्विस। वो सीरीज और स्टेप्स और लेवल होते हैं, एक ही पे ग्रेड के अंदर में अलग अलग लेवल, तो उसे पे रेंज कहते हैं। ग्रेड का मतलब होता है एक क्लास में, ठीक है। दिस इज व्हाट द ग्रेड डेफिनेशन इज, written description of level to say responsibility, knowledge required, jobs in each grade, similar jobs can be combined into the classes. So the grade description are written based on compensable factor, ठीक है। तो यहां पे आप समझेंगे जब सेम लेवल, द टर्म इज सेम लेवल, जब एक ही लेवल पे अलग अलग जॉब्स को आप ग्रुप करते हो ना तो हम उसे ग्रेड कहते हैं, एक ग्रेड में आते हो, ठीक है। जैसे कि अब ऐसा होता है ना, E2 लेवल या E2 ग्रेड के एम्प्लॉयज हैं, A1 के एम्प्लॉयज हैं, तो A1 में ग्रेड, A1 ग्रेड में HR के भी हो सकते हैं, IT के भी हो सकते हैं, मार्केटिंग के हो सकते हैं, लेकिन इनके जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। ये डिसीजंस लेंगे तो एक तरीके का सेम लेवल का डिसीजंस लेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेड। पे स्केल का मतलब होता है जो सैलरी हम पे करते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज योर PYQ एज इट इज 2023 मार्च में पूछा गया था, कॉपी पेस्ट किया है इस क्वेश्चन को एज इट इज, ठीक है। और इसके पहले भी जून मार्च 2023 2022 में भी इसको पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन इज which of the following 3-tier system of participation was recommended by tripartite committee on workers participation in 1977, the chairmanship of Shri Ravindra Verma। so Shri Ravindra Verma की लीडरशिप के अंदर में WPM को इंट्रोड्यूस किया गया था। इन्होंने 3 लेवल्स पे पार्टिसिपेशन की बात की थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से 3 लेवल,
यूनिट लेवल, शॉप फ्लोर लेवल, प्लांट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। चलो आंसर करो। फाइन, ओके, आई होप ये कॉपी पेस्ट है, वैसे का वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। द आंसर फॉर दिस इज शॉप फ्लोर लेवल, प्लांट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। यूनिट लेवल को आप याद रखेंगे कि ये जो है ना, ये यूनिट लेवल इंदिरा गांधी के बाद वाला जो प्रोग्राम हुआ था, बाद वाला जो फंड आया था, उधर से इंट्रोड्यूस किया गया था यूनिट फर्स्ट टाइम। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो दिस इज व्हाट वर्मा कमिटी विच वॉज अंडर द जनता गवर्नमेंट, ठीक है। इट रिकमेंडेड द 3 टायर पार्टिसिपेशन, शॉप, प्लांट, कॉर्पोरेट और द बोर्ड लेवल। कई बार इसको बोर्ड लेवल भी बोला जाएगा, बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट दिस स्कीम वॉज applicable to those undertakings employing 400 or more workers। ऐसे चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ये क्वेश्चन भी PYQ है, ठीक है। कहां पे एप्लीकेबल था ये वाला स्कीम, वर्मा कमेटी वाला? हर जगह पे, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कॉर्पोरेट हो, हर जगह पे एप्लीकेबल है। जहां 400 और मोर एम्प्लॉयज हैव बीन वर्किंग, वहां पे 3 लेवल का वर्कर्स पार्टिसिपेशन ओपन करना चाहिए। शॉप लेवल यानी डिपार्टमेंटल लेवल पे आप एक काउंसिल बनाएंगे, प्लांट लेवल यानी प्लांट लेवल पे काउंसिल बनाएंगे, और बोर्ड लेवल जहां पे आप एम्प्लॉयज को बोर्ड में पार्टिसिपेशन अलाउ करेंगे, ठीक है। देयर शुड बी अ प्रोविजन टू एक्सटेंड द स्कीम टू द यूनिट्स एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 100। ये तो हो गया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर कोई स्पेसिफिकली यूनिट है, केवल एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट है यानी एक इंडस्ट्री, एक प्लांट है, वहां पे भी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, अब क्या होता है, एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जो एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो सीक्रेट बैलॉट के थ्रू होता है। सीक्रेट बैलॉट यानी वोटिंग के, आप सब वोट करते हैं ना, वोटिंग के थ्रू, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था इक्विटी पार्टिसिपेशन, वो जो लास्ट वाला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, इक्विटी शेयर, वो यहीं से रिकमेंड हुआ था और यहीं से इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इक्विटी पार्टिसिपेशन, शेयर में नॉट लेस देन 10%, जितना भी शेयर है उसका कम से कम 10% शेयर एम्प्लॉयज को अवेलेबल करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The criteria for the recognition of trade union has been laid down under Industrial Dispute Act 1947, Trade Union Act of 1926, Code of Discipline, Industrial Employment Standing Order Act of 1946. Please remember, registration of trade union and recognition of trade union both are different. Recognition is a kind of process where employer recognizes certain trade union as an recognized trade union to enter into collective bargaining process। मतलब अगर एक इंडस्ट्री में मल्टीपल ट्रेड यूनियन है, इन मल्टीपल ट्रेड यूनियन में से कौन पार्टिसिपेट करेगा या कौन एम्प्लॉयर से आके कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगा, ठीक है। सो दैट इज रिकॉग्निशन। ये रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया कि भाई मैंने ट्रेड यूनियन 1 को रिकॉग्नाइज करना है, 2 को रिकॉग्नाइज करना है, 3 को रिकॉग्नाइज करना है, ये जो क्राइटेरिया है ये हमारे कोड ऑफ डिसिप्लिन में दिया हुआ है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है वो ट्रेड यूनियन एक्ट में दिया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये तीनों रेगुलेटिव लेजिस्लेशन है। रेगुलेटिव यानी देयर मेन पर्पस इज टू बिल्ड गुड एंड हार्मोनिकल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रिवेंटिव एंड सेटलमेंट मशीनरी प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एक ये प्रिवेंटिव
मेजर है डिस्प्यूट को बचाने के लिए, जहां ऑर्डर्स या रूल्स ले डाउन किए जाते हैं। इसके अंदर में एक ही स्केड्यूल है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में 5 स्केड्यूल हैं जो आपको पता होना चाहिए। ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, ट्रेड यूनियन कैसे रजिस्टर्ड होंगी, किस कंडीशन में रजिस्टर्ड होंगी, वह उनका एम्प्लॉयर के साथ में क्या रिलेशन होगा, वो ट्रेड यूनियन एक्ट में है। कोड ऑफ डिसिप्लिन, जो कोड ऑफ डिसिप्लिन है ये 1958 में एग्जिस्टेंस में आया था। इट इज एन वॉलेंट्री एग्रीमेंट साइंड और एक्सेप्टेड और अडेप्टेड बाय एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। वॉलेंट्री है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। कोड ऑफ डिसिप्लिन याद रखेंगे, कोड ऑफ डिसिप्लिन कोई कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है। लेकिन कोड ऑफ डिसिप्लिन को अडॉप्ट करने वाला ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोड ऑफ डिसिप्लिन हमारी क्लासेस में कवर अप करेंगे। कोड ऑफ डिसिप्लिन हमें क्या क्या देता है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन की कंडीशंस देता है। कोड ऑफ डिसिप्लिन नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में स्ट्राइक्स की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ग्रीवियंस मशीनरी एंड ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या होगा, बेसिकली मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या होगा, मॉडल, ये हमारे कोड ऑफ डिसिप्लिन में दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल में हम क्लासेस में कवर करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, रेस्ट वी विल बी डूइंग इट टुमारो। Which of the following statements can be contribution for developing HRD climates in an organization? Very simple question. So now human resource development का climate and human resource development का culture, दोनों बहुत important terms हैं। Quickly answer, then I will be ending because we have a class. चलो fine. So yes, the option has to be the first one, strong belief of top management of capabilities of employee. HRD क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। ये तभी पॉसिबल है जब टॉप मैनेजमेंट बिलीव करती हैं कि एम्प्लॉयज के पास कुछ कैपेबिलिटीज हैं। HRD पॉलिसी शोइंग हाई कंसर्न, यस। गुड HRD सब सिस्टम इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, यस। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट से। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। फाइन, so that was the session for the day. We would be continuing it tomorrow same time 10 a.m. next question we would be doing it tomorrow. Now I have a class on padhai. Thank you so much for everyone for being there. Anyone who wish to follow my courses can download the Padhai app. The link is given in the description. You can join the Telegram group for this PDF. You can share with others the video as well so that